बड़ी खबर आ रही है दिल्ली धमाकों से जुड़ी हुई, जिस पर सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। सरकार ने यह मान लिया है कि दिल्ली धमाका कोई आम नहीं, ये एक आतंकी घटना थी। कैबिनेट बैठक में जांच के तेज करने के आदेश दे दिए गए हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, जिसमें धमाका बताया गया देश विरोधी ताकतों की आतंकी करतूत। कार धमाका जघन्य था और बड़ी खबर यह है कि सरकार ने यह मान लिया है कि यह आतंकी घटना थी। जिस ओर लगातार सुदर्शन संभावना जता रहा था, जिस ओर संकेत कर रहा था, जो संदेश साक्ष्य प्रमाण गवाह से आ रहे थे, जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, जो तस्वीरें थी, वो साफ साफ इशारा कर रही थी कि ये कोई आम धमाका नहीं, ये आतंकी घटना है। और अब सरकार ने भी इस पर मुहर लगा दी है। सीसीएस की बैठक के बाद बड़ा बयान आया है सरकार का, जब सरकार ये कह रही है कि दिल्ली धमाका आतंकी घटना थी। कैबिनेट बैठक में जांच तेज करने के आदेश दे दिए गए हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और देश विरोधी ताकतों की आतंकी करतूत दिल्ली धमाकों को करार दे दिया गया है। और इस बीच इस पूरे मामले की जांच एनआईए को पहले ही सौंपी जा चुकी है और ऐसे में कहा गया है कि दोषियों और मददगारों की जल्द पहचान होगी। सभी एजेंसियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। एनआईए और दिल्ली पुलिस मिलकर जांच में जुटी है। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि साजिश के हर सिरों तक पहुंचेंगे। याद होगा आपको कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही दिन जब ये धमाका हुआ, उन्होंने कहा था कि हर एंगल से जांच हो रही है। और अब जब सरकार ने ये मान लिया है कि ये आतंकी घटना है, तो साजिश के हर सिरों तक पहुंचने की कोशिश जारी रहेगी और जो भी आरोपी रहेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज कैबिनेट की शुरुआत में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो मैं आपके सामने पढ़ के रखना चाहूंगा। द कैबिनेट एक्सप्रेस्ड इट्स प्रोफाउंड ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ लाइव्स इन द टेररिस्ट इंसिडेंट involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. This is the text of the resolution now. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The cabinet also recorded its appreciation for the statements of solidarity and support from many governments around the world. The cabinet notes with appreciation the timely and coordinated response of the authorities, security agencies and citizens who acted with courage and compassion in the face of adversity. Their dedication and sense of duty are deeply commendable. The cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. The cabinet reaffirms the government's steadfast resolve to safeguard the lives and well-being of all Indians,
consistent with its enduring commitment to national security and the safety of every citizen. तो सरकार ने ये मान लिया है कि ये आतंकी घटना है और हर एंगल से इसकी जांच हो रही है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। धमाके की रात संदिग्धों ने जो कार इस्तेमाल की थी दूसरी लाल रंग की इको स्पोर्ट कार को फरीदाबाद के खंडावली गांव से बरामद कर लिया गया है। फरीदाबाद पुलिस ने खुफिया इनपुट मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए कार को अपने कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि ये वही कार है जिसका इस्तेमाल संदिग्धों ने धमाके की रात दिल्ली से फरीदाबाद आने जाने के लिए किया हुआ था। इस बरामदगी से जांच एजेंसियों को मामले की कड़ी को जोड़ने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। इस बीच शुरुआती जांच में यह भी संकेत मिल रहे हैं कि यह वाहन फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े लोगों के संपर्क में रहा। पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि बरामद कार का नंबर DL10 CK 0458 है और इसका लिंक दिल्ली ब्लास्ट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर से जोड़ा जा रहा है। पुलिस फिलहाल कार की फॉरेंसिक जांच करा रही है ताकि इसके अंदर से मिले साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच हो सके। फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि कार को खंडावली गांव के पास से बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ है कि वाहन को जानबूझकर यहां छोड़ा गया था। इस बरामदगी के बाद दिल्ली पुलिस, NIA और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त टीम अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस कार में धमाके के वक्त कौन कौन सवार थे और इसे कहां कहां ले जाया गया था। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह वाहन घटना की पूरी साजिश की गुत्थी सुलझाने की असली कुंजी प्रमाणित हो सकता है। तो फरीदाबाद के खंडावली गांव से जो कार, लाल रंग की कार जो संदिग्ध कार थी, वो बरामद कर ली गई है। वाहन का नंबर DL10 CK 0458 बताया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर से कार के तार जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं कार को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही साथ पुलिस और NIA की टीमें मिलकर जांच कर रही है कि आखिर फॉरेंसिक टीम को भी कार से अहम सबूत मिलने की पूरी उम्मीद है। ये कार किस तरीके से, इसमें लोग थे, डॉक्टर उमर से इसका किस तरीके से संबंध है, बरामदगी से बहुत सारी जो गुत्थियां हैं वो सुलझ सकती हैं। वहीं भूटान के 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली लौटते ही सीधे LNJP हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने लालकोट मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके, गौरीशंकर ब्लास्ट में घायल लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से बातचीत की, उनका हाल जाना, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। LNJP अस्पताल में मौजूद वरिष्ठ डॉक्टरों और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को घायलों की स्थिति और दिए जा रहे इलाज की पूरी जानकारी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग इस साजिश के पीछे हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्होंने X पर लिखा, पोस्ट किया कि LNJP अस्पताल गया और दिल्ली विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिला। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में ये कहा कि दिल्ली में हुआ ये हमला सिर्फ कुछ परिवारों पर नहीं हुआ बल्कि देश के दिल पर हमला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने को तैयार है, हर संभव मदद पहुंचाएगी पीड़ित परिवारों को और इस हमले के पीछे की पूरी साजिश को उजागर किया जाएगा। मंगलवार को भूटान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी मन से इस घटना का जिक्र किया था। कहा था कि मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी को बहुत दुखी किया है। मैं प्रभावित परिवारों का दुख समझता हूं। पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। मोदी ने यह भी बताया कि वो सोमवार रात से ही घटना की हर जानकारी ले रहे हैं और जांच एजेंसियों से लगातार संपर्क में हैं। सोमवार शाम करीब 6:52 पर लालकोट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में जोरदार विस्फोट हुआ था। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। अब तक इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अभी भी घायल हैं।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले और आत्मघाती साजिश दोनों एंगल से जांच की शुरुआत पहले दिन से कर दी थी और अब तो सरकार ने भी मान लिया है कि ये एक आतंकी घटना है और ऐसे में एनआईए पूरी तरह से खंगाल रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि ये जो तार, जो ये पूरा नेक्सस बना, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर सज्जाद, ये जो पूरा आतंकी डॉक्टरों का नेटवर्क है, वो किस तरीके से भारत को दहलाने की और बड़ी साजिश रच रहा था, इस पर जांच शुरू हो चुकी है। सूत्र ये कह रहे हैं कि इस धमाके के पीछे जैश से जुड़े मॉड्यूल का हाथ होने के संकेत मिले हैं, क्योंकि जो खास तौर से डॉक्टर शाहीन है उसे जैश का कमांडर यहां बताया जा रहा है, महिला कमांडर बताया जा रहा है, जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भारत की बेटियों को वो जैश में शामिल करे, आतंकी घटनाओं में शामिल करे। जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ये बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक समर्पित और व्यापक जांच दल गठित किया है, जो हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहा है। एनआईए की टीम ने घटना स्थल से जुटाए गए सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शवों या कपड़ों पर किसी छर्रे के निशान नहीं मिले, जिससे इस बात की संभावना बढ़ती है कि विस्फोट में आरडीएक्स या उच्च शक्ति वाले विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। ज्यादातर घायलों को शरीर के ऊपरी हिस्से, सिर और छाती में गंभीर चोट आई है। कुछ पीड़ितों के कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें फट गई है, जो विस्फोट की तीव्रता को दर्शाता है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि ये ब्लास्ट किसी सुसंगठित आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मिलकर इस केस की जांच कर रही है। सूत्र के अनुसार जांच एजेंसियों ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है और विस्फोटक सामग्री के सोर्स की पहचान भी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद उम्मीद है कि जांच में और तेजी आएगी। सुरक्षा एजेंसियों को दिल्ली और एनसीआर में हाई अलर्ट पर रखा गया है और मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश के मन को झकझोर दिया है। मैं सभी पीड़ितों और उनके परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत आतंक के इस दर्द को भूलेगा नहीं, साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जो आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इन सब के बीच धमाका देश में, देश के दिल पर जो आघात पहुंचाया गया, इस धमाके के बाद से राजधानी दिल्ली में हुए इस आतंकी वारदात के तार कहां जुड़ रहे हैं, इस पर भी चर्चा गर्म हो चुकी है, बहस शुरू हो चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है। I-20 कार में हुआ वो धमाका जिसने न सिर्फ 12 बेगुनाहों की जान ली, बल्कि कई सवालों के जख्म भी छोड़ दिए। वो कार कब, कहां, कैसे पहुंची, कौन था उसमें, और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्यों सामने आ रहा है दिल्ली धमाकों का तुर्की कनेक्शन। हाँ, तुर्की, वही देश जो बार बार भारत विरोधी ताकतों का ठिकाना बन चुका है। सीरिया, पाकिस्तान और अब भारत में आतंक का नेटवर्क कहीं तुर्की की जमीन तो नहीं बना रही है अगला आतंकी लॉन्च पैड? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुर्की में अगला आतंकी लॉन्च पैड बन रहा है? क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जिस ब्रेजा कार की तलाश में एजेंसियां हर कोना खंगाल रही थी, उसमें मौत का सामान भरा था, तो ये कौन भेज रहा था? ये डेथ व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पर कैसे दौड़ी? क्या ये कोई अकेला हमला नहीं, बल्कि एक बड़े मॉड्यूल की शुरुआत है? भारत की राजधानी के बीचों बीच जहां संसद है, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय है, वहां एक धमाका और सुराग जा रहे हैं तुर्की तक। तो क्या तुर्की की एजेंसियां या उसके इशारे पर चल रहे इस्लामी संगठन अब भारत के अंदर जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? क्या दिल्ली का धमाका सिर्फ एक आतंकी वारदात है या भारत के खिलाफ तुर्की का नया जिहादी मिशन? इन तमाम सवालों के जवाब समेटती हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट।
की राजधानी दिल्ली, जहां हर सड़क, हर दीवार पर सीसीटीवी है, जहां सुरक्षा सबसे कड़ी मानी जाती है, वहीं एक i20 कार बन गई डेथ मिशन। सोमवार की शाम 6:52 पर जब ये कार ब्लास्ट हुई तो 12 जिंदगियां पल भर में खाक हो गईं और 20 से ज्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रह गए। दिल्ली पुलिस, NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमें एक-एक करके सुराग पर काम कर रही हैं और अब जांच में जो नया एंगल सामने आया है वो भारत के दुश्मनों का चेहरा दिखाता है, क्योंकि इस ब्लास्ट का कनेक्शन तुर्की तक जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ केमिकल कोई RDX नहीं, बल्कि एक हाई ग्रेड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव था जो तुर्की के आतंकी नेटवर्क में प्रचलित है। वही नेटवर्क जो ISIS और पाकिस्तान के कट्टर संगठनों को फंडिंग देता है और अब उसी जाल में फंसता नजर आ रहा है भारत का दिल, दिल्ली। जांच में सामने आया एक और चौंकाने वाला तथ्य। ब्लास्ट साइट से कुछ दूरी पर देखी गई ब्रीजा कार अब रहस्य बन चुकी है। कहा जा रहा है कि उसी कार में भरा था मौत का सामान। लेकिन सवाल ये, वो ब्रीजा दिल्ली लाई किसने, किसके इशारे पर आई और क्या इसमें तुर्की से भेजा गया विस्फोटक भी था? कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि तुर्की अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में हाइब्रिड टेरर नेटवर्क खड़ा कर रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी एजुकेशन के नाम पर, और अब सीधे ब्लास्ट के जरिए भारत की राजधानी को निशाना बनाया गया है। वो तुर्की जो कश्मीर पर बार बार झूठ बोलता है, जहर उगलता है, जो भारत की सेना को बदनाम करने की साजिश रचता है, क्या अब वही भारत के भीतर डायरेक्ट टेरर फंडिंग का केंद्र बन चुका है? अब दिल्ली की सड़कों पर सवाल गूंज रहा है, क्या ये तुर्की की साजिश थी? क्या दिल्ली का ब्लास्ट दरअसल भारत के खिलाफ नया इस्लामी मिशन है? और अगर हाँ, तो इस टेरर ट्रोल को कौन काटेगा? ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मा पर हमला था। और सुदर्शन न्यूज पूछता है, क्या अब तुर्की, पाकिस्तान और उनके सरगना हमारे देश में जहर फैलाते रहेंगे? भारत अब चुप नहीं रहेगा, क्योंकि ये दिल्ली का ब्लास्ट नहीं, भारत के खिलाफ जिहाद की चेतावनी है। तो स्पष्ट है कि जो सामने वाला दुश्मन है वो तो दिख रहा है, लेकिन दुश्मन के पीछे छिपा हुआ जो दुश्मन है, क्या उस पर से आंख बंद कर लेनी चाहिए? क्या उसे नजरअंदाज करना चाहिए? या असल में दुश्मन के पीछे छिपा हुआ जो असली दुश्मन है वो भारत के लिए कितना खतरनाक है, उसे लेकर एक नया कदम उठाने की जरूरत है? क्या तुर्की को लेकर भारत को अब डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव पॉलिसीज अपना लेनी होगी? क्योंकि यही तुर्की है। आपको याद होगा कि कश्मीर के मसले पर किस तरीके के स्टेटमेंट आए। हमेशा से कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच में तुर्की ने किस तरीके का वक्तव्य दिया। एर्दोगान जो इस्लामिक मुल्कों का खलीफा बनना चाहते हैं, लगातार भारत विरोधी बयान देते रहे हैं। धारा 370 के खात्मे के बाद भी किस तरीके के बयान आए थे, और ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से पाकिस्तान को लॉजिस्टिक दिए गए, वो ड्रोन्स जो मेक इन तुर्की थे, इसके अलावा इंजीनियर्स प्रोवाइड किए गए भारत को दहलाने के लिए। लेकिन ये नया भारत है जो छेड़ने पर छोड़ता नहीं है। इसलिए इस नए भारत को ये आवश्यक है कि वो केवल सामने खड़े हुए दुश्मन से आंखें दो चार न करे, बल्कि दुश्मन के पीछे खड़े हुए दुश्मन को भी पहचान कर सही समय में सही कदम उठाए। किस तरीके की दिल्ली धमाकों को लेकर आगे की परिस्थिति बनती है, उस पर सभी की नजर है। लेकिन इन सब के बीच प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। डॉक्टर शाहीन के रिश्तेदार ये कहते हैं कि उनको पता नहीं कि डॉक्टर शाहीन कैसे इन्वॉल्व हो गई आतंकी वारदात में। तमाम जो राजनेता है वो ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में जो भी इस धमाके में इन्वॉल्व है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता पर प्रहार है। चंद प्रतिक्रियाएं आपके लिए। की घटना थी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। और उसके बाद आप सोचें कि हजारों पुलिसकर्मी हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जो हाई अलर्ट का प्रोटोकॉल है अभी जारी है। जितने भी सस्पेक्टेड हाइड आउट्स हैं, पार्किंग प्लेसेस है, एबंडेंड व्हीकल्स हो, सामान हो, चेकिंग हो, तो जो भी एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई कोई आगे अप्रिय घटना ना कर जाए,
तो आप सोचेंगे कि बोलना आसान है, कि ग्राउंड पर जाएं तो हाई अलर्ट का मतलब कि हज़ारों घंटे हज़ारों आदमी लगा रहे हैं और हम पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं और बाकी एजेंसियां काम में लगी हुई है और हम परिवार के प्रति हमारी संवेदना, जिन्होंने अपना आदमी खोया, जो घायल हैं, तो उनसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम जल्दी से ठीक हो जाएं और जिन्होंने ऐसा किया है तो जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको पताल से भी ढूंढ निकालेगी, उनको उनके किए की सजा मिलेगी। ये जाने वाले नहीं अभी देश से, क्योंकि हमारा पड़ोसी बहुत दुखी है, परेशान है, हार चुका है, पिट भी चुका है। तो जो पड़ोसी है वो कैसे दर्द सहे जब तक ये चलाता न रहेगा। और साथ में ये मनी पावर है, ये जो ग्रुप्स हैं ये पैसा है, पैसा का खेल है, क्योंकि अगर ये टेरर नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे। तो ये तो चलता रहेगा। हमारे देश को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, रेडिकलाइजेशन से बचेगा, अपने फेथ को टेरर के लिए नहीं अटैक करेगा, अपने फेथ को अच्छे कर्मों के लिए करेगा। जब तक ये समझ नहीं बढ़ेगी ये टेरर अटैक होते रहेंगे। हमको बहुत समझदारी से इस देश की पुलिसिंग करनी है और मैं समझती हूँ इंटेलिजेंस तो है, पुलिस का रोल बड़ा जबरदस्त है इन्वेस्टिगेशन में, फोरेंसिक्स में, प्रिवेंशन में, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग का इस वक्त सवाल है। हम अपने अपने पड़ोसी का ध्यान रखें कि क्या कर रहा है हमारा पड़ोसी। ये इतना ज्यादा सामान इतनी आसानी से इकट्ठा नहीं होता है, तो प्रश्न पूछना पड़ेगा गांव के प्रधान को, एक RWA को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, एक प्रधान को, कि क्या ला रहे हैं तो तुम मकान का, तू तो रहने के लिए आया था। भाई आप लोग जो दिखा रहे हैं बस वही इतना ही मालूम है। अच्छा, जो शाहीन के पास गाड़ी में जो सामग्रियां मिली हैं उसको लेकर के एजेंसियां साफ तौर से कह रही है, जो जैसे मोहम्मद जो संगठन है उससे जुड़ी थी, जम्मू कश्मीर को लेकर के और दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसमें भी उनका सम्मिलित होना बताया गया है। अब सम्मिलित होना बताया गया है, वो क्या जान रहे हैं वो वही जाने भाई। अच्छा, आप लोग कब से उनसे अलग रह रहे हैं, क्या वजह रही कि सभी लोग अलग हो गए? वजह क्या रही कि वो ज्यादा पढ़ लिख गए थे तो वो चले गए यहाँ से। अब हम जो मतलब इस लेवल तक नहीं पहुँच पाए तो हम वहीं रह गए। अच्छा, और हम क्या कहेंगे भाई। शाहीन पहले अलग गई शादी के बाद या फिर परवेज का एक घर छोड़ करके चले गए अलग रहने के लिए? घर छोड़ के आ रहे हैं भाई। अब जब आदमी को यहाँ नहीं रह रहा, अब आपके माध्यम से चल रहा है मेरे को कि वहाँ पे भी इनका घर है। जहाँ बता रहे थे अभी भाई साहब जो सवाल कर रहे थे कि वहाँ पे भी घर है, तो आज तक ना हम घर गए उनके ना जो है। दोनों का व्यवहार कैसा था, किस तरीके से जो है एक सुलझा व्यवहार था? हम तीनों का व्यवहार सुलझा था, दोनों का नहीं कहिए, तीनों का व्यवहार सुलझा हुआ था, लेकिन कोई किसी वजह से जो है नहीं जा पाए। तो डॉक्टर शाहीन के रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि कैसे इन्वॉल्वमेंट हो गया, लेकिन इतना ज़रूर है कि डॉक्टर शाहीन और उसका भाई परवेज किस तरीके से देश में आतंकी वारदातों में शामिल अपने आप को करते रहे, किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों के लिए वो आधार बनाते रहे, एक के बाद एक ये कड़ी खुलती जा रही है। और इससे भी बढ़कर देखिए, धमाका दिल्ली में हुआ है, लेकिन इसके तार 4 स्टेट्स को जोड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, फरीदाबाद और फिर दिल्ली में धमाका। यानी ये बताता है कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो देखने में साधारण दिखते हैं, ये डॉक्टर्स हैं, लेकिन इनके दिमाग में जो केमिकल लोचा चल रहा था वो देश विरोधी गतिविधियों का चल रहा था। ये आतंकी डॉक्टर देश की सेहत खराब करने के लिए किस कदर आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, एक एक करके कड़ी खुल रही है। और ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो बड़ा नेक्सस, ये जो बड़ा तंत्र भारत में पैर जमा चुका है, उसे जड़ से उखाड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की जो आवश्यकता है, वो बड़ा कदम बहुत जल्द उठाया जाएगा। दिल्ली, जिसे देश का दिल कहा जाता है, जहां से राष्ट्र की नीतियां तय होती हैं, जहां से भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचती है, उसी दिल्ली को 10 नवंबर की शाम बारूद से चुनौती दी गई। भारत को झुकाने की साजिश रची गई। लाल कोट, इंडिया गेट, गौरी शंकर मंदिर, रेलवे स्टेशन, ये तमाम जो स्थान थे वो सभी आतंकियों के टारगेट पर थे, जिन्हें व्हाइट कॉलर आतंक के माध्यम से उड़ाने की साजिश पिछले कई महीनों से रची जा रही थी। लेकिन आतंकियों के तमाम मंसूबों पर हमारी एजेंसियों ने पानी फेर दिया।
10 नवंबर की शाम हुई थोड़ी सी चूक ने दिल्ली को दहला दिया। लालकोट के पास 800 साल पुराने गौरी शंकर मंदिर की आतंकवादियों ने उसे निशाना बनाया। बम ब्लास्ट के बाद से एनआईए एक्शन मोड में है। एक आतंकी तक पहुंचकर उसे 72 हुरों तक पहुंचाने का प्लान बन चुका है। उधर भूटान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कह दी है। भूटान से लौटते ही मोदी सबसे पहले अस्पताल पहुंचे, एलएनजेपी हॉस्पिटल, जहां उन्होंने घायलों से मिलकर उनका हाल जाना। इसके बाद बड़ी बैठक, आपात बैठक सीसीएस की, और इस बैठक के बाद जो निकलकर सामने आया वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस घटना को आतंकी घटना सरकार ने मान लिया है और इस लिहाज से जांच अब आगे बढ़ेगी और स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी हाल में दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। सेना ने कई बार, ये भी अब हो रहा है, बैठक हुई है, बख्शा नहीं जाएगा कि नहीं। ये तार अगर पाकिस्तान तक जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से अगर टर्की तक जुड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत को छेड़ दिया है। पहले ही आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही ये कह चुके हैं कि अगली बार अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो क्या सवाल ये है कि वो ऑपरेशन सिंदूर जिस पर अभी पॉज बटन है, उस पॉज बटन से उंगली उठाने का समय आ चुका है, क्योंकि मोदी सरकार पहले ही कह चुकी है कि कोई भी आतंकी हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। और जब जांच में जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है, तो इसलिए आज हम कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की तबाही के काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली फिर दहली है। राजधानी के दिल में बारूद बोया गया। और अब सवाल ये नहीं है कि ये किसने किया, बल्कि सवाल ये है कि भारत क्या करेगा। दिल्ली धमाके के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की आपात बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, क्योंकि अब बात जांच से आगे बढ़ चुकी है और अब बात है जवाब की, और वो भी भारत के तरीके से। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसीज ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें साफ लिखा है कि हमला एक्ट ऑफ वॉर है। और याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कहा था कि अब से हर आतंकी हमला युद्ध की घोषणा माना जाएगा, यानी एक्ट ऑफ वॉर होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दिल्ली धमाके के तरीके, टाइमिंग, मोडस ऑपरेंडी को देखकर खुलासा हुआ है कि इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ है। वही जैश जिसने पुलवामा कराया था, वही जैश जिसने संसद पर हमला करवाया था, और अब उसने दिल्ली को निशाना बनाया है। लेकिन इस बार भारत का तेवर और भी सख्त है। प्रधानमंत्री मोदी खुद दिल्ली धमाके के पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। घायल नागरिकों के बीच जाकर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उनका हाल जाना, बल्कि उन्हें न्याय का वचन भी दिया। और याद कीजिए, सिर्फ एक दिन पहले भूटान की धरती से पीएम मोदी ने चेतावनी दी थी, जो भी इस हमले के पीछे है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख
समझता हूं आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. विदेश भूमि से ये बयान केवल एक भाषण नहीं था, ये भारत के प्रतिशोध का ऐलान था। उनके शब्दों में वो गूंज थी जो सरहदों के पार तक सुनाई दी, क्योंकि मोदी का संदेश साफ था, भारत अब खून के हर कतरे का हिसाब लेगा, क्योंकि भारत अब 26/11 वाला भारत नहीं है। ये वो भारत है जिसने पुलवामा के बाद बालाकोट में जैश के ठिकानों को राख में तब्दील कर दिया था, और अब ऑपरेशन सिंदूर 2 के संकेत मिलने लगे, जहां जवाब सीमा पार जाकर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये ऑपरेशन सिंदूर वाला भारत है जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है। और अगर आतंक और आतंकियों के आका ये सोच रहे हैं कि वो भारत को दहला देंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी है। यानी भारत एक बार फिर तैयार है। सवाल जवाब हर कुछ पूछा जाएगा, हर उस शख्स से, हर उस आतंकी से, हर उस आरोपी से जिसने भारत की आत्मा पर प्रहार किया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रहार की बात हो रही है, वार पलटवार की बात हो रही है, तो राजनीति में भी खूब प्रहार हुए, खूब वार प्रतिवार हुआ। बिहार में चुनाव हुआ, जमकर हुआ, बम्पर वोटिंग हुई, और अब इंतजार रिजल्ट का है। वो रिजल्ट, वो परिणाम जो 14 नवंबर को आएंगे। लेकिन दूसरे चरण के चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, जो एग्जिट पोल सामने आया, उसने एनडीए और महागठबंधन, दोनों ही गठबंधनों की स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट कर दिया है। लगभग सभी सर्वे में एनडीए की सत्ता में वापसी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि महागठबंधन ने इस सर्वेक्षण को सिरे से खारिज कर दिया है। दावा किया है कि इस बार बिहार में बदलाव तय है। बदलाव की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आरजेडी नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का कहना है कि एग्जिट पोल मतदान खत्म होने से पहले ही आ गए थे। हम ऐसे सर्वे को लेकर ना तो किसी भ्रम में हैं और ना ही किसी भ्रांति में। इस बार 2020 की तुलना में 72 लाख अधिक लोगों ने मतदान किया, जो बदलाव का स्पष्ट संकेत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर विधानसभा में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और ये वोट परिवर्तन के लिए डाले गए हैं। 14 तारीख को परिणाम आएंगे और 18 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, ये तय है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर भाजपा नेता अजय आलोक ने पलटवार किया। कहा कि अंग्रेजी में एक शब्द है डिल्यूजन, यानी भ्रम। तेजस्वी यादव उसी में जी रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने 99 सीटें जीत ली है, मुख्यमंत्री बन गए हैं और सरकार बना ली है। अगर उन्हें इतनी जल्दी है तो 18 तारीख को शपथ भी ले लें। अजय आलोक ने व्यंग करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को यह शपथ लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी गलतियां की हैं, जितनी भी कमाई गलत तरीके से की है या जितनी भी बेईमानी की है, उसे लौटाकर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये शपथ ज्यादा उपयोगी होगी। गौर करने वाली बात यह है कि ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को 130 से 167 सीटों तक मिलने का अनुमान जताया गया है। सुदर्शन न्यूज का एग्जिट पोल जो हमने आपके सामने रखा, एनडीए 171
एनडीए को मिलने की संभावना है। वहीं महागठबंधन 69 पर सिमट रहा है। औसतन अगर देखें तो एनडीए को लगभग 147 सीटों की बढ़त दी जा रही है हर एक एग्जिट पोल में, जो पिछले अनुमानों से करीब 20 सीटें ज्यादा है। वहीं अगर महागठबंधन को देखा जाए तो 70 से 102 सीट मिलने का इसको संभावना लग रही है। साल 2020 में विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए ने मामूली बढ़त के साथ सरकार बनाई थी। 125 सीटें एनडीए की तरफ से आई थी। अंग्रेजी में एक शब्द होता है डेल्यूजन, मतलब मानसिक असमंजसता। जब ये हो जाती है तो आदमी 99 सीट में जीत जाता है। लोकसभा में 99 सीट जीत कैसे से करता है। जब ये हो जाती है तो आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री भी बना लेता है, सरकार भी बना लेता है। यहाँ इमरजेंसी जब लगी थी, इमरजेंसी 77 में, तो यहाँ पे सब नेता लोग इसी तरह से पार्लियामेंट लगाते थे। कोई रिक्शा पर बैठ के वाइस चांसलर बनता था, कोई मुख्यमंत्री बन जाता था। लालू जी उसमें पात्र थे, तो गुण आए हुए हैं अभी। 18 तारीख को शपथ जरूर लें, लेकिन ये शपथ लें जीवन में आज तक जितनी गलती की है, जितनी चोरी की है, जितने पैसे कमाए हैं, वो सब लौटा देंगे, जेल में जाएंगे और दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस चीज का शपथ लें, बेहतर रहेगा। ये बिहार के मतदाता के अंदर एक विश्वास जगा है एनडीए सरकार के प्रति, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार के लिए स्पेशल पैकेज और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए, और साथ ही डबल इंजन की सरकार ने बिहार के जनता का विश्वास जीतने का काम किया। और यही कारण है कि 20 वर्ष शासन करने के बाद भी लोगों का उत्साह, उत्सव के माहौल में एनडीए सरकार के लिए और मतदान करने का काम किया मतदाता ने, और फिर एक बार एनडीए सरकार बने। देखिए, ये एग्जिट पोल के केवल रुझानों से स्पष्ट नहीं हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी दलों के जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता हैं, निरंतर उनके साथ मॉनिटरिंग पार्टी और गठबंधन के दल कर रहे थे, और जो उनके रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के रुझानों से बेहतर नतीजे हमारे पक्ष में आने जा रहे हैं, और एक बार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए, सबके लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है, और डबल इंजन की सरकार होने की वजह से जो भी नीतीश कुमार जी ने फैसले लिए, उन फैसलों में केंद्र की सहायता से हमारा रास्ता आसान हुआ। अब जो चीज़ें उभर कर के आई, महिलाओं ने जब भी बढ़ चढ़ करके वोट किया है, उसका फायदा एनडीए को और नीतीश कुमार जी को मिलता रहा है। पूर्व में भी चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। 2 चरण में ये चुनाव हुआ। हम सबसे पहले महागठबंधन के सारे नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को और सभी बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ करके बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है, एक ऐतिहासिक जो मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान किया है, इसके लिए सभी हमारे बिहार के लोगों को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चाहे तो बाहर के अधिकारियों को बुलाया गया है, वो भी आपको पता है, और ज्यादातर जो शासित बीजेपी शासित राज्यों के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। कोई भी जहां विपक्ष का राज्य में सरकार है वहां के लोगों को नहीं बुलाया गया है। लेकिन इस बार अगर काउंटिंग में अगर कोई भी बेईमानी होगी
तो जनता मुंह तोड़। तो देखिए, अपनी अपनी तरफ से दावे अभी भी किए जा रहे हैं, लेकिन दावों और वायदों की जो कसौटी होती है वो जनता के लिए कितनी खरी उतरती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होता है। सर्वे आ चुके हैं, एग्जिट पोल आ चुका है, एनडीए को बढ़त मिल रही है, महागठबंधन इसे भ्रम बता रहा है, लेकिन बहुत कुछ निर्भर कर रहा है जनता और जनता की सोच पर। लगातार इस चुनावों के दौरान हमने देखा कि विकास का मुद्दा छाया रहा, तो क्या इस बार विकास को ही जनता दोबारा चुन रही है, वो विकास जिसकी डिलीवरी हुई? और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए ये कह रही है कि इस बार फिर से 25 और 30 नरेंद्र और नीतीश। नजर बनी रहेगी, लेकिन इन सब के बीच नए भारत की नई बुलंद तस्वीर पर भी हमारी नजर है। भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य सहयोग और संचालनात्मक तालमेल, जो कंपैटिबिलिटी होती है, संचालन की जो कंपैटिबिलिटी होती है, संचालन के लिए जो जरूरी चीजें होती है, उसे मजबूत करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। मित्र शक्ति 2025 इसे नाम दिया गया है। 11वां संस्करण इस समय कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में जारी है। यह अभ्यास 10 नवंबर से शुरू होकर 23 नवंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी, जो ऑपरेशंस होते हैं, अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है, आपसी समझ को गहरा करना है और आतंकवाद व उग्रवाद विरोधी अभियानों में सर्वोत्तम रणनीति का आदान प्रदान कैसे हो, इसे समझाना है। आज के सत्र में भारत और श्रीलंका की टुकड़ियों ने निरस्त्र युद्ध यानी अनआर्म्ड कॉम्बैट का संयुक्त अभ्यास किया। इस ड्रिल में सैनिकों ने सटीकता, अनुशासन और पारस्परिक तालमेल का शानदार प्रदर्शन किया, जो दोनों सेनाओं के बीच गहराते भरोसे को दिखाता है। अभ्यास के दौरान स्वदेशी हथियारों और आधुनिक प्रगति का प्रदर्शन भी हुआ, आधुनिक प्रणाली का प्रदर्शन भी हुआ। ये भारतीय सेना की आत्मनिर्भर भारत के विजन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और तकनीकी क्षमता में तेजी से हो रही प्रगति को दिखाता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मित्र शक्ति सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि ये भारत और श्रीलंका के बीच मित्रता, शांति और सुरक्षा साझेदारी का प्रतीक है। ये क्षेत्रीय स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा की दिशा में दोनों देशों के साझा संकल्प को रेखांकित करता है। इस साल के अभ्यास का मंत्र है मित्र शक्ति 2025, 7 शांति के लिए, 7 शक्ति के लिए। That is secured General Assembly which once the pistol